Namaskar, everybody. Hello. Good evening. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm present with my lecture on American drama. I'm live. Kindly show your presence so that we can start the class. Good evening, Kundan. Kindly share the video. Kindly share this live stream. I keep requesting all of you that if you watch on Facebook, you should share it there, and when I upload it on YouTube, you should help students by sharing it. Good evening, Shireen. I can see some of you now. So let us start the class. Earlier, I was planning to extend the lecture of American novel, but then I found that we should focus on, because the exams are around the corner now, so we should more focus on American other themes of American literature also, and that is they mostly give us one or two questions on American drama also. So probably I'll be giving you two lectures, one today, and I can't promise for tomorrow's lecture because very late in the noon I will proceed, or I will start, or I will set for Jaipur. So if I reach late there, I won't be able to take your class tomorrow. I'm not sure. If I find that it's okay, I will take your class tomorrow also. But the next class would also be on American drama, and I would like to cover almost all the major important dramas which I consider from examination point of view are important. Okay, so first of all, let us talk about that. My students should know that in American drama, if you search in different books, you'll come to know that there are two or three typical terms used. One is American drama, there is American play, then American theater. So first of all, let us talk about some conceptual things, like why mostly we talk about American poetry and American novel, but when we talk about American theater or American drama or American play, we don't have a very rich history of American drama. Is there anybody who can tell me the reason that why drama do not have a very enthusiastic history in America? Suppose they ask you this question. I would wait for your answer. Kindly try to answer the question. क्या कारण है कि अमेरिका में अमेरिकन लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो वी मोस्टली हैव अमेरिकन ड्रामा ऑफ 20th century. We mostly don't have American drama of the earlier centuries. क्या आप में से कोई मुझे उसका कारण बता सकता है? Suppose they ask you this question, because I have seen this question or this kind of conceptual question in exam. I would wait, because mostly I keep teaching and utilize every fraction of a second during my live sessions. But I thought like I would like to ask this question, and then I would wait for your answers too. Yeah, I'm waiting. I'm still waiting. Anybody who can answer my question, that why drama lost its charm in 20s? Okay, one answer: America was colonized. So Tabassum, what is wrong if America was colonized? Even India was colonized, but the starting of the English drama, even we have a better history to claim than if we go for history in America for theater. आपको एक छोटा सा बीइंग कॉलोनाइज्ड नहीं, शत्रुपा, ये आंसर नहीं है, बहुत कॉमन सा आंसर है. इसका मतलब है कि आप लोग अमेरिकन लिटरेचर को सीरियसली अटेंड नहीं कर रहे हैं. कोई कारण है कि आप लोग यू आर टेकिंग दीज लेक्चर्स वेरी लाइटली. अरे भाई, अच्छा चलो बताओ कि थिएटर्स ब्रिटेन में क्यों क्लोज करा दिए गए थे, बताइए. 1642 के अंदर जब थिएटर्स को बैन किया गया था तो प्यूरिटन गवर्नमेंट थी ना, एंड यू ऑल नो दैट अमेरिका वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्यूरिटन पीपल. तो
ये बहुत बेसिक सा आंसर है कि दे नेवर एनकरेज्ड एनी काइंड ऑफ वेवर्डनेस। वेवर्डनेस का मतलब होता है कि क्योंकि अमेरिका प्यूरिटन लोगों के द्वारा बसाया गया था, और प्यूरिटनिज्म में आपको प्यूरिटन देखो, जो प्यूरिटन रिलीजन है उसका एक बेस आपको पता होना चाहिए। यहां तक कि आपको एक नाम लिखिए फटाफट से, एक ये पॉइंट बनाते जाइए, दैट अमेरिका वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्यूरिटन पीपल। सेकंड पॉइंट, प्यूरिटन्स पीपल वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, पर्टिकुलरली ड्रामा एंड थिएटर। फिर थर्ड पॉइंट लिख लो, बिकॉज दे ऑल्सो फोर्स्ड दैट थिएटर्स बी क्लोज्ड इन अमेरिका ऑल्सो, सॉरी इन ब्रिटेन ऑल्सो। सो दिस इज अ बेसिक आंसर। अगर आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे तो आप आराम से इसमें से चूज कर सकते हैं कि ये जो वेवर्डनेस यानी बिगड़ा हुआ टाइप का एंटरटेनमेंट ये लोग माना करते हैं। तो ये आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अच्छा, दैट कैन बी द रीजन दैट अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग वाज नॉट बैंड, क्लियर, बट ऑब्वियसली थिएट्रिकल थिंग्स वर नॉट एनकरेज्ड देयर। ओके, अच्छा, फिर एक दो बातें और पता होनी चाहिए कि जब अमेरिकन थिएटर कंपनीज किसी तरह से ब्रिटेन से कुछ कंपनीज आई भी, तो वो लोग शेक्सपियर के ओथेलो और हैमलेट जैसे ड्रामाज दिखाते थे, टेम्पेस्ट और ओथेलो जैसे ड्रामाज। ओके, और बाद में एक जो मैं आपको, आई थिंक आई वाज इन्फॉर्मिंग यू इन वन ऑफ माय लेक्चर्स अबाउट अंकल टॉम्स केबिन। अंकल टॉम्स केबिन जो नॉवल है उसको भी ड्रामा के तौर पर परफॉर्म किया गया था अमेरिका में। ओके, बट सीरियस थिएटर जो है वो 20th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, और वो भी मोस्टली पोस्ट वर्ल्ड वॉर। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के लिए दे वुड गिव यू 2-3 टर्म्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। वन, एक लिखिए एंटीबेलम, ANTEBELLUM, एक लिखो एंटीबेलम, और एक का नाम लिखो पोस्ट बेलम। एंटीबेलम, बेलम एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है वॉर। ओके, ठीक है, तो एंटीबेलम का मतलब बिफोर वॉर एंड पोस्ट बेलम का मतलब है आफ्टर वॉर। तो ये एक बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ, और ये हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 8 minutes वी हैव जस्ट tackled that situation, harnessed that those conditions where America did not approve of drama, and that is the reason that it had a very late beginning. Okay, चलिए अब बात करते हैं कि अमेरिका में बहुत से ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए हैं who have won world recognition, ठीक है, लेकिन कुछ एक ड्रामेटिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा कैनोनिकल हैं। कैनोनिकल का मतलब लिख लीजिए जिनको सिलेबस में पढ़ाया जाता है। आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली शेयर दिस लाइव स्ट्रीम टू द अदर ग्रुप्स वेयर यू आर मेंबर्स। आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप दूसरे स्टूडेंट्स की प्लीज हेल्प करिए। एग्जाम के लिए अगर मैं लाइव आ रहा हूं तो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी आ रहा हूं, मैं चाहता हूं दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट लें इन चीजों से, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट का नाम मैं लेता हूं ताकि 1 घंटे में आपको काफी सारे प्लेस डिस्कस कर लो। फटाफट लिखिए आर्थर मिलर, ठीक है। आर्थर मिलर जो है वो एक बहुत रिनाउंड फिगर माने जाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आई स्टार्ट विद आर्थर मिलर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट 2 or 3 important prizes which are bestowed on the best plays and dramatists in England, in America. नाम लिख लीजिए। एक तो है पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा दिया जाता है, यू शुड राइट इट डाउन। पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। एक दिया जाता है टोनी अवार्ड, ठीक है, एक आप लिख लीजिए टोनी अवार्ड। आपको इन दोनों का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अमेरिका में ड्रामा के लिए कौन सा बेस्ट अवार्ड दिया जाता है। तो पुलित्जर अवार्ड के अलावा टोनी अवार्ड। और हमारे एग्जाम में because it's a vast course, and to cull 100 questions out of all great books of literature. So what they do, they mostly select all the plays which have won recognition in the world and have won these kind of Tony Award and Pulitzer prizes, ठीक है। तो आर्थर मिलर का नाम इसलिए आता है क्योंकि आर्थर मिलर के को टोनी अवार्ड भी मिला हुआ है और पुलित्जर प्राइज भी। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा कि उनका जो सबसे पहला जो प्ले था उसका नाम लिखिए आर्थर मिलर का, द मैन हु हैड ऑल द लक। लिख लीजिए द मैन हु हैड ऑल द लक। ये फेल हो गया था प्ले, ठीक है, ये ज्यादा दिन नहीं चला, ओनली शायद 4 परफॉर्मेंसेज हुई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो प्ले लिखा ऑल माई सन्स, ये 1946 में लिखा।
तो अगर आपको ऑप्शन एक आता है जिसमें उनके प्लेस 4 प्लेस देख करके और उनको अरेंज करना हो, तो आपको पहला प्ले पता होना चाहिए, द मैन हु हैड ऑल द लक, ठीक है। सेकंड लिखिए ऑल माई सन्स। ऑल माई सन्स की मैं थोड़ी सी स्टोरी आपसे डिस्कस करूंगा। लिखिए ये 3 एक्ट प्ले है। ऑल माई सन्स इज अ 3 एक्ट प्ले रिटन इन 1946, ठीक है। उसके बाद में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इसको टोनी अवार्ड मिला है, ठीक है। और लिखो टोनी अवार्ड मिला है इसको। और उसके बाद है कि भाई किस टॉपिक पर आधारित है, ठीक है। ऑल माई सन्स, एक इसको मैं बहुत शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो आपने वो एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, रंग दे बसंती एक फिल्म आई थी आमिर खान की, इफ यू रिमेंबर। आपको मालूम है उसमें एक थीम थी दैट अगर तुम्हारे देश में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको कौन सुधारेगा। फिर उसमें हेलीकॉप्टर के या जो मिग जो हवाई जहाज हमने जो हेलीकॉप्टर्स लिए थे रशिया से, आपको मालूम है कि वो काफी ज्यादा क्रैश हो जाते हैं और उनसे एक्सीडेंट्स में वो पायलट्स मारे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई करप्शन है कि कौन इनको अप्रूवल देता है, समझ रहे हो ना। सो ये जो प्ले है ऑल माई सन्स, ये इस थीम पर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक मैन्युफैक्चरर होता है और किस तरह से वो अपने बेनिफिट के लिए गलत पुर्जे बेचता है और किस तरह से उसका खुद का लड़का जो है वो वॉर में मिसिंग पाया जाता है। और पहले तो वो ब्लेम डालता है अपनी फैमिली के ऊपर कि भाई अपने फ्रेंड के ऊपर, सॉरी, वो बाकायदा उसको दिखाया है डीवर को जेल में बंद। और ये आइडिया, अच्छा यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि एक तो मैं आई एम डिस्कसिंग द प्लॉट लाइन ऑफ दिस प्ले ऑल माई सन्स, और साथ में पता होना चाहिए कि ये जो आर्थर मिलर हैं, अमेरिका के बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, लिखते जाइए, बाय हेनरिक इब्सन, द नॉर्वेजियन प्ले राइट। उनका एक प्ले था द वाइल्ड डक, लिख लीजिए। ये जो ऑल माई सन्स, दिस प्ले इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, और आई वुड से दैट आर्थर मिलर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेनरिक इब्सन एंड हिज पर्टिकुलर प्ले द वाइल्ड डक, लिख लीजिए, क्योंकि उसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी थी हल्की सी। तो ये आप पॉइंट्स बनाते जा रहे होंगे अपने, जल्दी से लिख के मुझे बताइए इफ यू हैव बीन नोटिसिंग द पॉइंट्स, दैट वुड exhilarate me, that will give you a boost in my arm, and I will start teaching you with the zest and gusto. चलिए टाइम लेंगे आप लोग। तो बात चल रही थी कि ऑल माई सन्स में वो अपने फ्रेंड पे आरोप लगा देता है। उस फ्रेंड की जो लड़की होती है वो भी शी कम्स एंड स्टार्ट लिविंग, बिकॉज वो उस लड़के की गर्लफ्रेंड होती है जो लड़का वॉर में मिसिंग है। फिर बाद में इस प्ले में दिखाया कि देन ही रियलाइजेस दैट इट इज माई फॉल्ट and I cannot put the blame and can make a lame excuse that if I am money minded and I can blame my family that whatever I was doing for the sake of my family. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से एक प्ले है और बाद में then he realizes that all my sons and I take the blame on myself. तो एक प्ले है और मैंने आपको इसका एक ओवरऑल आइडिया दे दिया है, साथ में इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, आपको एक 2-3 छोटी छोटी बातें मैं बार बार करता रहता हूं, जैसे इफ यू रिमेंबर आई कीप टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग माय अदर लेक्चर्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन, द रोरिंग 20s, द लॉस्ट जनरेशन, अमेरिकन मिथ ऑफ सक्सेस, अमेरिकन ड्रीम, हार्लेम रेनेसा, अमेरिकन रेनेसा। लिखते जाइए अगर आप अमेरिकन लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं। एंड आई बेट फ्रेंड्स, अगर आप ये कुछ टर्म्स को थोड़ा अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, then you'll find that most of the time they have been asking you questions regarding that. And in my yesterday's lecture, I also discussed like certain tropes and metaphors which are very commonly shown in the play. I mean, in the novels of American literature. अभी बात चल रही है अमेरिकन ड्रीम की। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थर मिलर जो है, कोई भी एक लेफ्ट विंग राइटर, इफ एवर एग्जिस्टेड, or if ever we find any person who believes in a kind of equality around the world, one who believes that any kind of patriotism is politics, anybody who recognizes that whatever is going on in the world is for the sake of money and human sentiments are not being utilized more, as we discussed yesterday about Humboldt's gift, so what I want to say, I want to convey a message right now that Arthur Miller was a great critic of American dream. लिख लीजिए, Arthur Miller was a great critic of American dream. ठीक है? And
he has constantly been criticizing this tug of war, this luck and pluck, the concept of luck and pluck, the concept of tug of war, the concept of luck, the concept of presenting someone presentable, presenting someone like जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका प्ले डिस्कस करूंगा आर्थर मिलर का डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो वो जो सेल्समैन है वो अपने आप में एक मेटाफर है, सेल्समैन। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एनी कंट्री in which there is a huge setup and politicians and businessmen, they have a nexus, then you can understand the future of that country. That has been shown in this play. ठीक है, तो आपको इतना सा याद रखना है और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो आपको एक क्वेश्चन पूछे, एक कमेटी का नाम लिखिए हाउस, लिखिए हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी। एक कमेटी बनाई गई थी, उसका नाम था हाउस अन अमेरिकन, कैपिटल यू से अन डैश अमेरिकन, अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमिटी। ठीक है, ये 1950s में बनाई गई थी और इसमें इनको पेशी देनी पड़ी थी आर्थर मिलर को कि भाई वट एवर आई हैव रिटन दैट डजंट मीन दैट आई एम अगेंस्ट अमेरिका। जैसे आजकल होता है ना, जैसे इफ यू रिमेंबर, जैसे कि भाई अगर आप कोई भी चीज के लिए गवर्नमेंट के साथ नहीं हो, इट मीन्स यू आर अनपेट्रियोटिक। ठीक है, तो दैट इज नॉट फेयर, इजंट इट? तो कोई भी ऐसी चीज है जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वेदर इट इज इंडिया और अमेरिका और इंग्लैंड, तो ये जो इस तरह के राइटर्स होते हैं वो करते हैं। अच्छा, आपको आर्थर मिलर के बारे में बहुत सारी बातें और भी मालूम होनी चाहिए कि आर्थर मिलर जो थे वो दुनिया की जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर में हेलन के बाद जो सबसे खूबसूरत औरत मानते हैं वो है मार्लिन मुनरो। ये उनके हस्बैंड थे। ठीक है, उन्होंने उनसे शादी की थी मार्लिन मुनरो से। मुझे नहीं मालूम आपको इस एज में मार्लिन मुनरो का कितना नॉलेज है। मुझे तो इतना पता है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई बॉट अ पोस्टर, वॉल साइज पोस्टर ऑफ मार्लिन मुनरो एंड आई वाज ऑस्ट्रक विद हर ब्यूटी। तो उसके बाद जब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट बना, देन आई रेड अबाउट मार्लिन मुनरो एंड आर्थर मिलर एंड तो बड़ा इट्स अ वाव मोमेंट फॉर मी। चलिए, हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटी कमिटीज के बारे में लिख लिया आप लोगों ने। आर्थर मिलर को उसके सामने अपना रीजन देने के लिए इनवाइट किया गया था। इनवाइट क्या, उनको आदेश दिया गया था कि भाई आपको आके बताना है कि वट एवर यू हैव रिटन इज नॉट अगेंस्ट अमेरिका। इज दैट ओके? अच्छा, फिर इनके कैरेक्टर्स के नाम लिखिए इस प्ले में। जो इसका हीरो है उसका नाम है जो केलर। ठीक है, पहले तो इनको चार्ज किया जाता है, फिर बाद में इसको एक्सोनरेट कर दिया जाता है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। अच्छा, इसमें आप पूछ सकते हैं कि वो जो फाइटर प्लेन्स में जो पुर्जा लगाते हैं वो उसका नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, उस हवाई जहाज का नाम बार बार आ रहा है प्ले के अंदर, लिख लीजिए कर्टिस P-40, CURTISS, कर्टिस कैपिटल P-40। ठीक है, उसके बाद में जो केलर लिख लिया आपने, ये प्रोटैगोनिस्ट है। हालांकि ये पूरे प्ले में अपने आप को जस्टिफाई करता है कि उसने गलत पुर्जे क्यों लगाए। दूसरी जो कैरेक्टर है इनकी जो वाइफ है, दैट इज केट केलर। लिख लीजिए जो केलर, केट केलर, KELLER, KATE, केट केलर। ठीक है, और एक क्रिस केलर। ठीक है, क्रिस केलर। तो मैं ज्यादा नाम नहीं लिखाऊंगा। एक एन डीवर का नाम लिख लीजिए, एन डीवर, ANN लड़कियों का नाम हुआ करता है, DEER। तो ठीक है, तो ये जो प्ले है मैंने इसकी स्टोरी समझाई आपको, ऑल माई सन्स का कॉन्सेप्ट समझाया कि द वे ही रियलाइज इज एट द एंड ऑफ द प्ले दैट व्हाटएवर आई डिड वाज रॉन्ग एंड मेरा ही बेटा नहीं खोया है, मेरा बेटा नहीं मरा है। किसी का भी बेटा मरता है तो वो मेरा बेटा है। दैट जस्टिफाइज द टाइटल, लाइक ऑल माई सन्स। ठीक है, आर्थर मिलर का प्ले है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस टाइप का प्ले इन्होंने लिखा है। ठीक है, फिर आप लिखिए द क्रूसिबल, एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। हालांकि मुझे ये उतना सक्सेसफुल प्ले की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन ये बीच बीच में इसको काफी ज्यादा प्ले करवाया जाता है। और ये बात आपको क्रूसिबल के बारे में बताता हूं। देखो, आपको याद है सलेम विच क्राफ्ट ट्रायल? लिख लीजिए फटाफट से अपनी कॉपी में, सलेम विच क्राफ्ट ट्रायल्स। एंड द वर्ड सलेम इज वेरी फेमस। ठीक है, वो जगह का नाम है जहां पे विच क्राफ्ट ट्रायल्स हुए थे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका जो है उसमें प्यूरिटन्स लोग जब आए थे तो उनके साथ साथ में
बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी आए थे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे उसकी बात करते हैं कि भाई किस टाइप का प्ले है, क्रूसिबल क्या है। क्रूसिबल का मतलब जानते हो आप लोग? एक तरह की भट्टी, ठीक है, भट्टी समझते हो, जिसमें आग जलती है और जिसके ऊपर कढ़ाई रख के कुछ बनाया जाता है शादियों में, काइंड ऑफ अ बिग ओवन यू कैन से, ठीक है। 1953 का प्ले है ये, आर्थर मिलर का लिखा हुआ है, और इसमें सलेम विचक्राफ्ट ट्रायल का रेफरेंस आता है, ठीक है। देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ सलेम विचक्राफ्ट ट्रायल्स, ठीक है। और ये एक और अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वेयर डिड दिस सलेम विचक्राफ्ट ट्रायल्स हैपेंड। तो लिख लीजिए मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी, लिख लीजिए MASSACHUSETTS, मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। ये सलेम विचक्राफ्ट ट्रायल्स इस जगह पर आकर हुए थे 1692 टू 93। अपने आप में डेट फेमस है। अमेरिकन लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो वन शुड बी अवेयर ऑफ दिस डेट 1692 and 93। अंदाजा लगा लीजिए, इन द एंड ऑफ द 17th century दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन सेटलिंग्स ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक नई टर्म लिखनी है। एक स्टूडेंट इफ इज स्टडिंग अमेरिकन लिटरेचर, जैसे मैं आपको बार बार कुछ टॉपिक्स टिप्स पर करवा रहा हूं अमेरिकन लिटरेचर का, एक वर्ड बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा एंड दैट इज मैकार्थीज्म। लिखिए MC, कैपिटल MC, मैक, फिर कार्थी का C कैपिटल कर लीजिए, CARTHYISM, मैकार्थीज्म, ठीक है। अब ये मैकार्थीज्म किसी को पता होगा नहीं पता, आई डोंट नो, सो लेट मी क्लियर इट, कि अमेरिका के अंदर कम्युनिस्ट्स को काफी अक्यूज किया जाता था और उनको अच्छा नहीं माना जाता था। ये बात आप में से कई लोगों को पता चल जाएगी। बंगाल में चुनाव है और कम्युनिस्ट्स को का खात्मा हुए 12 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, और बंगाल इतना थ्राइविंग स्टेट होने के बावजूद भी कितना ज्यादा पीछे रह गया। तो हालांकि जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, आपको मालूम है कार्ल मार्क्स से आता है, लेकिन समवेयर इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज, ओके, कम्युनिज्म इज नेवर वेलकम्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कुछ ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया कि उन्होंने इस तरह के लोगों को बीच बीच में परसिक्यूट किया, उनको सजा दी, उनको एग्जीक्यूट किया, उनको जेल में डाला, ठीक है, वो लोग जो कम्युनिस्ट थे। तो मिलर जो थे वो भी आपको मैंने अभी बताया कि वो एक लेफ्ट विंग राइटर रहे हैं, और वो कोई भी ऐसी चीज जो इनह्यूमन होती है उसको क्वेश्चन करते हैं। तो मिलर वॉज क्वेश्चनड बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कमिटी ऑन अन अमेरिकन एक्टिविटीज। ये मैं थोड़ी देर पहले आपको लिखा चुका हूं, अन अमेरिकन एक्टिविटीज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उनको ऐसे कहा गया था कि बाय राइटिंग दिस प्ले ही हैज रिटन समथिंग अगेंस्ट द कांग्रेस, वहां की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, ठीक है। तो क्रूसिबल एक प्ले है जिसमें सलेम विचक्राफ्ट ट्रायल का एलेगोरिकल रेफरेंस आता है कि जिस तरह से मैकार्थी की गवर्नमेंट ये जो लेफ्ट विंग राइटर्स हैं या जिनको हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट बोलते हैं, कम्युनिस्ट को प्रोसिक्यूट कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही उस जमाने में जब ये नई नई कॉलोनी बसी थी अमेरिका की, तो जितनी भी औरतें अपना सिर उठाती थी उनको विच कह करके जला दिया जाता था। क्योंकि विच का कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए ना, कि अगर आपने कभी स्कारलेट लेटर, मैंने आपको लेक्चर दे रखा है, तो स्कारलेट लेटर में भी विचेस का रेफरेंस आता है कि somebody, particularly a woman, one who has her own mind, one who reasons with the patriarchal norms, someone who wants her own privacy and isolation, तो उसको विच कह करके they used to बर्न। और बाद में एक ट्रायल हुआ था जिसमें मेरे ख्याल से मुझे एग्जैक्टली 13 के आसपास विचेस को जला दिया गया था। तो सलेम विचक्राफ्ट जो ट्रायल है उसके बारे में सभी अमेरिकन लिटरेचर के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो द क्रूसिबल समझ में आ गया। उससे पहले ऑल माई सन्स, उससे पहले हमने उनका जो फर्स्ट प्ले था कि वो मैंने आपसे डिस्कस किया, द मैन हु हैड ऑल द लक, ठीक है। फिर मैंने बीच में आपको बताया कि द वाइल्ड डक जो हेनरी किप्सन है उनसे इंस्पायर्ड थे हमारे आर्थर मिलर। अब एक नए प्ले के बारे में लिखिए, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, लिखते जाओ फटाफट से, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ये भी एक 1955 का प्ले है इनका, 1 एक्ट वर्स ड्रामा है, ये इसकी खूबसूरत बात है, ठीक है। 1 एक्ट वर्स ड्रामा
ऑप्शंस में दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पे कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपको इसका जो कैरेक्टर उसका नाम लिख लो, मैच करने के लिए आ सकता है। ALFIERI, एल्फ्री, ठीक है। एल्फ्री एडी पूरा नाम है इसका, एडी लिख लीजिए आप, EDDI। ये क्वेश्चन आ भी रखा है क्लास आपके एग्जाम में शायद, ठीक है। अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, इसमें एक उन्होंने कोरस का यूज किया है। इसमें मैंने जो एल्फ्रिक बता रहा था वो नैरेटर है, सॉरी, जो ट्रेजिक हीरो है उसका नाम है एडी, EDDIE, ठीक है। तो इसके बारे में इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्ले, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, लिख लीजिए, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। इट्स अ 1949 स्टेज प्ले, लिख लीजिए फटाफट से, 1949। एंड देयर आर वेराइटी ऑफ थीम्स इन दिस प्ले। शॉर्ट में बताऊं तो एक सेल्समैन है जिसके 2 बच्चे हैं, उसकी एक वाइफ है। किस तरह से उसने ही हैज बॉट एवरीथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट। इनके घर में एक शेवरले कार है, उसको बच्चों के साथ धोने का सीन आता है। पॉइंट बनाते जाइए, मैं इनके कैरेक्टर्स के नाम भी अभी लिखाऊंगा। कि दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द शैटरिंग अमेरिकन ड्रीम ऑफ सक्सेस। दिस प्ले, Death of a Salesman, and this Death of a Salesman is an allegory of death of America, one who is always busy in selling himself, ठीक है। कि एक आदमी है जो हमेशा अपडेट रहना चाहता है, one who wants to improve his condition, his skills, और लेकिन उसके जो मालिक जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका बच्चा जब उसकी कंपनी को संभालता है तो इसको नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि वो कहता है कि आप बूढ़े हो गए हो, और वो अब उतनी सेल्स नहीं कर पा रहा है। तो इसमें दिखाया गया है कि फिर क्या है कि हाउ विली, इसका जो प्रोटैगनिस्ट का नाम है वो है विली लोमन। आपको सबको ये वाला प्ले पढ़ने के लिए मैं कहूंगा कि आज अमेरिकन ड्रामा पे लेक्चर है, तो कुछ ड्रामास के नाम में लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, कुछ को आई वुड बी आस्किंग यू टू रीड इन डिटेल, ठीक है। अच्छा, विली लोमन का एक बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है। विली मीन समवन हु हैज विल, अ विल, एंड लोमन मीन टू से बट समवन हु रिमेन्स लो। तो इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि बहुत सारे इसमें मेटाफोरिकल सीन्स आते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, दैट दिस प्ले इज बेस्ड ऑन or not based, it is shown or written in expressionistic style. Okay, this particular play, Death of a Salesman, was written in an expressionistic style. Now someone who doesn't know the meaning of expressionistic style, वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस यूज किया जाता है स्टेज का। और रिटन प्ले में तो ये दिखाया जाता है कि लाइक सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, ओके, एंड बात करते करते अचानक से मैं अपने पास्ट में जाता हूं। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है ना, बिकॉज यू ऑल नो दैट विद द एडवेंट ऑफ द 20th century, Sigmund Freud and the development or say deeper studies in the field of psychoanalysis, it ultimately affected the way we narrate things, the way we show things, the way we think, and how art can be depicted using the streams of our consciousness. कि हम लोग बात करते हैं आपसे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और लेकिन मैं हो सकता है कल के लेक्चर के बारे में भी साथ साथ में सोच रहा हूं। तो देयर आर 2 स्ट्रीम्स, और जो आपको मालूम है कि असली जो स्ट्रीम होती है यानी रिवर, नदी, वो एक डायरेक्शन में चलती है, लेकिन जो विचारों की स्ट्रीम है वो आपको मालूम है पीछे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है। तो एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक जो होती है वो पेंटिंग से ली जाती है। इसमें सररियलिस्टिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये बताने की कोशिश चलती है कि एक आदमी एक साथ 2-3 बातें सोच रहा है, वो प्रेजेंट भी सोच रहा है, उसको पास्ट भी याद आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस दैट मे ड्रैग यू टू थिंक अबाउट पास्ट? Just imagine and try to answer my question. That what can be the circumstances which may drag a person, to think about past? Or why a person dwindles between different time zones while physically being in one zone, but
temporarily he keeps dwindling, shifting, penduluming between the 2 or 3 states of existence mentally. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके आंसर में लेट हो जाएगा तो मैं आपको आंसर भी दे देता हूं. लेट इट बी अ रेटोरिकल क्वेश्चन नाउ. कि इसका आंसर होता है कि वी आर मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड समबडी has created certain situations or some political situations, some situations of market, they have created in front of you certain existential conditions where you have a threatening situation in front of you, that if you don't do something, or if you don't think about your past, or if you are bound to compare your present with your past. तो ये कारण है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर बहुत ब्राइट हो तो कौन जाएगा पास्ट में? अगर बुजुर्गों की बात को हम सब सुने, इमेजिन करो, कभी आपने नोटिस किया है कि कैन वी मेक अ कंट्री, कैन वी मेक अ सोसाइटी विच इज एवर फीजिबल फॉर द ओल्ड पीपल ऑल्सो, वेयर देयर आर नो restrictions. मैं ये बात अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं. यू कैन ब्लेम मी दैट I'm towards the wrong side of 40s, and because of that I'm talking about that. No way. You just go. Still, old age is a butt of laughter. आपको याद है W.B. Yeats, that great Irish poet, when he said that this is not a country for old people. I will go to Byzantine. Escapism is there. हम बूढ़ों पे हंसते हैं, हम उनके विचारों को आउटडेटेड कह देते हैं, isn't it? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं that somehow we have not created a space for those people who with less physical strength can dream. This plays about that, and why it happens. Why we retire people? Because we have an excuse that the newcomer will come and do the job. But the thing is, क्या बुजुर्ग होने से इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? क्या बुजुर्ग होने से डिग्निटी खत्म हो जाती है? क्या बुजुर्ग होने से आपको ऐसा लगता है that you are really a piece which has already been used? ऐसा नहीं है. Human beings are the same, their desires are the same, isn't it? इस प्ले में दिखाया है कि there are so many themes, as I told you very early in the lecture when I just touched upon this topic of death of a salesman, कि हम पता ऐसे सोचते हैं, अगर कोई अच्छी फैशनेबल औरत है और वो काफी एज में बाल कटा लेती है, लिपस्टिक लगाती है, अच्छे कपड़े पहनती है, कॉमनली उसको कहा जाता है बूढ़ी घोड़ी लाल लगा. आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो देन बी रेडी, यू विल बी इन दैट एज ग्रुप. एंड इसको जेरियाट्रिक्स बोलते हैं. एंड आई हैव माई ओन अथॉरिटी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज माई PhD on Margaret Laurence, the Canadian writer, that famous, world famous novel, The Stone Angel, is a study, on geriatrics. Geriatrics word अगर आपको नहीं आता तो आप लिख लीजिए. अगर आप इसको देखेंगे तो स्टडी ऑफ द ओल्ड पीपल. हैगर नाम की जो हैगर शिपले, वो जो कैरेक्टर है उसमें बूढ़ी है वो, और वो किस तरह से अपना स्पेस चाहती है, isn't it? तो मैं डाइग्रेस नहीं करूंगा, वापस से डेथ ऑफ अ सेल्समैन पे आ जाता हूं कि एक आदमी है, वन हु ड्रीम्स ऑफ ऑफ सक्सेसफुल सन्स, नंबर वन. नंबर टू, ही इज अ सेल्समैन. ही वांट्स एवरीथिंग which can give him a hallmark and authenticity that he is successful. आप ध्यान से देखिए क्या वो चीजें हैं. कार, फ्रिज, insurance policies, house, okay, and what not. And third thing in this play, which has been shown, that he cheats on his wife. He has some extramarital, liaisons with the other girls, and he
is a hypocrite person, because he doesn't say anything when he comes to know that his son is not doing well in maths, and he stole also, in the school somehow, कुछ चोरी की है उसने, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है. सो एक पूरा प्ले है जिसके अंदर उसकी मानसिक बदलती स्थितियां, उसका बॉस का लड़का जब टेक ओवर कर लेता है कंपनी को, तो किस तरह से वो उसको निकाल देता है. तो द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड एम्प्लॉइज बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. आप कभी देखिएगा when we see that is do you think like a company is opened just for the sake of benefit? Doesn't it have some ethical responsibilities towards the employees which worked hard to raise that company, isn't it? आपको थोड़ा डाइग्रेस में इसलिए होता हूँ ज्यादा ताकि आपको चीजें समझ में आए. मुझे अच्छी तरह से याद है बिमल रॉय की एक मूवी है 2 बीघा जमीन, और बलराज साहनी की उसमें मूवी भी बनी है, और वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम पर बेस्ड फिल्म है. बताइए, 2 बीघा जमीन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी, एंड दैट विजनरी, द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट ऑफ इंडिया, he could sense, oh my goodness, कि जमीन किसानों से लेकर के किस तरह से उनको यूज करके थ्रो कर दिया जाएगा. तो सेल्समैन इन दिस प्ले इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ कंपनी, बट क्या करते हैं उसको यूज करके, और दे आर वेरी रेडी टू डिस्पोज हिम ऑफ. ठीक है, 2 बीघा जमीन बाय टैगोर. यस, जॉमी शत्रुपा बता रही है 2 बीघा जॉमी बाय टैगोर. यस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको. चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं कि अच्छा, डेथ ऑफ अ सेल्समैन को पुलित्जर अवार्ड भी मिला है, टोनी अवार्ड भी मिला है. इफ यू हैव बीन लिसनिंग टू दिस लेक्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन यू नाउ नो, यू हैव हर्ड इट from horse's mouth now. Horse's mouth English में बोलते हैं, right from the authority now, that these 2 prizes are the very prestigious prizes in American culture. ठीक है, literature. अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, विली लोमन है, उसका नाम विलियम, पूरा नाम पूछ सकते हैं, विलियम विली लोमन. इसकी एज लिखो 63 ईयर्स है. ये थोड़ा अनस्टेबल है, इनसिक्योर है, इसको हमेशा इल्यूजन्स में रहता है. इंस्टेड आई वुड लाइक टू यूज द टर्म डिल्यूजन्स, नॉट इल्यूजन्स. ठीक है, एंड उसकी एक आदत है दैट ही डज नॉट इमेजिन ओनली, ही री-इमेजिन्स थिंग्स. ठीक है, फ्रॉम द पास्ट, एंड देन ही मर्जेस द imaginary and the real. Okay, there comes the that element of hallucination in the play. ठीक है, चलिए. He vacillates between different eras of his life. He keeps thinking about different periods of his life. ठीक है, and because of that he becomes a childlike phenomenon. आपको जब आप इतना सारा लिटरेचर पढ़ते हो बच्चों, हालांकि you have a pressure and sometimes you don't read the things in depth and detail, but whatever you must have read in your post graduation and all, you must have noticed that जब हम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और इंसान को ऐसा महसूस होता है कि वो फेलियर हो गया है, तो आपने देखा होगा खास तौर पे आदमी जो है वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं. मैं औरतों की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज women have a lot much pressure. They have been handling these men. And if you see, this, if you read this play, if you see the movie also, there are 2-3 movies. Oh my goodness. इनकी वाइफ जो है दिखा रखी है, लिंडा लॉमेन उनका नाम है. सच अ डेडिकेटेड वाइफ. उनकी वो आके लेट जाता है, उसके शूज उतारती हैं. ठीक है, मतलब आप इसके साथ इतना अटैच्ड फील करोगे, बट फॉर दैट यू शुड हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी टू मेक अ करियर एंड टू एक्सेल इन दैट करियर विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी हॉलीडे, विद ever becoming in possession with everything kind of mentality of America, जो धीरे धीरे हमारे यहां आ चुकी है कि हमें किश्तों पर हर चीज चाहिए. आज की यूथ देखिए, 30,000 कमाती है, मान लो किसी कंपनी में कोई बच्चा लगा है 30-40 हजार, तो वो आने से पहले ही उसका खर्च हो जाता है. एवरीथिंग इज ऑन इंस्टॉलमेंट. तो वो इसमें दिखा रखा है. ठीक है, हिज फर्स्ट नेम इज विली, रिफ्लेक्ट्स हिज चाइल्ड लाइक एस्पेक्ट. और लोमैन मैंने बता ही दिया है दैट समहाउ ही फील्स दैट. इसका मतलब है कि अमेरिका का जो कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर है
वो आदमियों को पनपने नहीं देता है। ये इसकी थीम है। लिंडा इनकी वाइफ का नाम है, लिख सकते हैं, सपोर्टिव है, डोसाइल है। अब फेमिनिज्म की थीम भी है इसके अंदर। आप अंदाजा लगाइए कि जब एक औरत है, वो हर तरीके से सपोर्ट कर रही है घर को, बट अगेन द ट्रेजेडी इज ऑफ विली लोवेन। इट हैज नॉट बीन शोन दैट इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ लिंडा। जैसे तारा, जो एक प्ले है, आपको किसने लिखा है तारा? चलो बताओ, तारा प्ले किसका लिखा हुआ है?